السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ گلشن میں جا کے دیکھ، نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے غوث اعظم کی، بغداد جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی تیرے نصیب سے ظلمت کی آندیاں، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تجھے، غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھ کو دید بھی خیر الانام کی، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ تجھ پہ بھی ہوگی غوث کی نظر کرم ضرور، تجھ پہ بھی ہوگی غوث کی نظر کرم ضرور، اس دل کو غوث پاک کا شیدا بنا کے دیکھ۔ شعر سن کر ناظرین محترم آپ سمجھ چکے ہوں کہ ان کا واقعہ ہم آج بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا میر میرا، شیخ عبد القادر جیلانی یعنی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک جلیبی بیچنے والے کا۔ ایک ایسا ایمان افروز قصہ جو آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گا اور آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر دے گا۔ تو میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے لگ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آپ کی رکت انگیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے، اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محلے کے کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں بھی کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ سرکار پیر پیرا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا جا رہے ہیں، جو سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے، کیا ان سے ہم کر دیں؟ کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ جو بابا صاحب ہیں نا، یہ تو بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے، ان سے ہم اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، بابا جی میری بات سنیے۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے کہو۔ اس نے کہا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹے کہو کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلانے جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں کیا؟ میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کو بڑی پیار سے فرمانے لگے کہ بیٹے ٹھیک ہے، میں تمہیں لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، حضور آپ اس بات پر اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ ایک بچے نے آپ سے کہہ دیا تو آپ اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا کر دے رہے ہیں اسے۔ حضرت آپ پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں جائیں گے؟ میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اشارے سے اس مرید کو منع فرما دیا اور کہا، اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے ہی اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی
तो उसने भी खुशी खुशी आप गौस पाक रहमत उल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उस शख्स की आंखों में आप गौस पाक रहमत उल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुनी कि आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी दुकान में अपने मुबारक कदम लेकर तशरीफ ले आए। हुजूर, मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में हूँ। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था कि हम आने वाले हैं? तो वो कहने लगा कि हजरत, एक अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा है और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाकों तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद तो दी है, लेकिन इनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहाँ पर कोई एक फ़कीर हैं, उनसे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर फ़कीर से मिलने चला आया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरा कारोबार अच्छा चलने लगे, कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिस्क में बरकत नाजिल हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फ़कीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अलमारूफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते क्या? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। तो वो कहने लगा, हैरत की बात है कि तुम्हें ये बात पता नहीं कि तुम नहीं जानते कि वलियों के सरदार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं तो बहुत छोटा सा एक अल्लाह का अदना सा गुलाम हूँ, एक फ़कीर हूँ। मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन हाँ, एक शख्स गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद मौजूद हैं तो फिर हमारा क्या मकाम होगा उनकी दुआओं के आगे? हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर ये बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताइए कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो वो फ़कीर शख्स मुझसे कहने लगा, सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जिलान में हैं, तुम उधर जाओ। हमारी क्या जुर्रत कि हम आपके लिए दुआ करें। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। हुजूर, जब उस फ़कीर ने मुझे ये बात कही तो मैं फ़ौरन जिलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखिए कि आप खुद ब खुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ़ ले आए हैं। अब देखिए कि आपके आने से कैसा नूर आ गया है। हुजूर, मेरे हक़ में दुआ फरमाइए, अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फ़िक्र है। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सब मामला ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ़ ले गए, उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दी। अभी वहाँ से जाने ही वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आया। उसने कहा कि बाबा, आपने इसे भी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दें। आपने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर दे देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हज़रत, आपने एक बच्चे के लिए काम कर दिया है ना, आपकी ज़ात बहुत ऊँची है, हम हैं ना आपके काम करने वाले, हम आपके ग़ुलाम हैं, हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझे कह रहे हैं ना, मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद चिढ़ने लगे, कहने लगे, हुजूर, आप बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? आपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जो काम के लिए चुना है बस हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह पाक की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर आप जितनी बार वो बच्चे आपको भेजते रहे, आप रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए जलेबियाँ लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आपने जलेबी लाकर दे दी और वो मज़े से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद वो आपको दुआएं देने लगे और कहने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपके बारे में हमने सुना था आप वैसे ही हैं। आप इखलाक के बहुत उम्दा हैं, आपकी सखावत के बड़े हमने चर्चे सुने थे, जितना सुन रखा था आप उतने ही सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीदों से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन मुरीदैन अभी तक इस सोच में थे, क्योंकि वो आपके मुरीद थे, आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर आपको कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ ना आई तो उनके जहनों में कई सवाल पैदा हो जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि खुद कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुदावंद करीम की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह अगर जलेबी वाले के पास गए तो इसमें क्या
हिकमत अमली छुपी हुई थी। चुनांचे आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी जलेबी का टोकरा लिए आप हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंच गया। आपकी खिदमत में जलेबी पेश करते हुए कहने लगा, हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीदेन वहां पर बैठे हुए थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की कि आप रहमतुल्लाह अलैह मेरे लिए दुआ फरमाएं, हजरत आपने मेरे हक में दुआ की और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर फरमा दिए हैं। मेरी दुकान में बरकत ही बरकत हो गई है। यकीन जानिए, इससे पहले दुकान में एक ग्राहक भी नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की आने की बरकत से, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ की बरकत से अब वहाँ पर लोग खत्म ही नहीं होते हैं। एक के बाद एक लोग आकर मेरे पास से जलेबी खरीदने लगे हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज़्यादा लजीज जलेबी हमने कभी पहले नहीं खाई है। इसके खाने को लोग लंगर गौसिया समझते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिस्क बांटने पे मजबूर हो गया हूँ। या गौसुल आज़म दस्तगीर, या पीराने पीर, यह आपकी दुआओं की बदौलत से हुआ है। अब आप ये जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदेन में भी तकसीम कर दीजिए। उसके बाद आप गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन ने भी उस जलेबी को नोश फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस जलेबी को तनाउल फरमाया। उसके बाद हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत हमें दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक ये बात भी मानते हैं कि अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवा लें तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात टल जाते हैं। मुरीदैन अब समझ गए उन बच्चों की बात को आप रहमतुल्लाह अलैह क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बात पर इतनी अहमियत दी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बन गए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उस जलेबी वाले की दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। बेशक गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्तजाबुद दवात हैं, यानी जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। जिनके लिए हुजूर गौसे पाक दुआ फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर सुनता है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी वाले की दुआ, उसकी फरियाद को सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे भी हम लोगों की दुआ सुन लेता है, लेकिन कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे बंदे होते हैं, बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जिनकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं ठुकराता। जिनके वसीले से अगर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल ज़रूर फरमाता है। और दुआ करने वाले जब इमामुल औलिया हों, सरदार औलिया हों, गौसे ज़मा हों, पीराने पीर हों, रोशन ज़मीर हों, गौसे आज़म दस्तगीर हों, तो फिर दुआ की कबूलियत तो होना ही है। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, तमाम औलिया अल्लाह के सदके, गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदके तमाम आलम इंसानियत पर अपना रहम व करम अता फरमाए, अपनी रहमत की नज़र अता फरमाए और हम सबको हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हम सब तमाम उम्मत मुस्लिमा को सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पैगाम औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए घंटी के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम, तमाम अंबिया कराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।